السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی چند دنوں سے ایک سارے ہبلی شہر میں ایک افواہ پھیل رہی ہے احادی یتیم خانے کے نام سے، جو ایک ولیمہ ہوا تھا ایک فاروق گلبرگہ کر کے ایک شخص کا، اس میں کچھ یہودی طریقے کے رسم و رواج ہونے کے طریقے سے جو ہوا وہ ہر ایمان والے مومن بندے کے لیے دردناک ہے، شرمندگی ہے۔ بے شک اس میں نہ ہادی یتیم خانہ یہ دعوتوں میں شروع سے انوالو تھا یا آخر میں انوالو تھا یا اس کے کوئی چیزوں کے بارے میں انہیں پتہ تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک ہی چیز ہوا کہ ہادی یتیم خانے کے سامنے کے گراؤنڈ جو قاضیوں کا گراؤنڈ ہوا، یہ گراؤنڈ میں ہوا۔ اس گراؤنڈ میں قوالیاں چلتے ہیں، سیاسی پروگرام چلتے ہیں، بیانات چلتے ہیں علماء کرام کے، اور اسی طرح دوسرے دعوتیں، رسم و رواج، ہر طریقے کے سب نمونے کے، اور کرکٹ کھلائی جاتی ہے، ہر نمونے کے یہ کاروائیاں چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب ہادی یتیم خانہ نہیں کرے۔ اسی طرح فاروق بھی یہ جو ولیمہ کا رسم ہوا اس گراؤنڈ میں کیا، نہ یہ گراؤنڈ ہادی یتیم خانے کا ہے، نہ اس میں ہادی یتیم خانے کا کوئی تعلق ہے۔ خود ہمارے آخری پچھلے سال ایک جلسہ ہوا بچوں کا مدرسے کا، اس جلسوں میں ہمیں اجازت لے تو ہمیں نہیں ملا گراؤنڈ، ہمیں روڈ میں بڑے روڈ میں کیے، 2 دن جلسہ ہوا، ہمیں خود باہر کرے، تو یہ گراؤنڈ ہمارا نہیں ہے، ادھر ہوا جو اب ہمنا بھی دعوت دیا گیا تھا، جو اس میں اسی طرح اس کے ابلی میں بڑے بڑے سیاست دانوں کو، انجمن لیڈرز کو، اور علماء کرام، سادات کرام، کئی لوگ آئے ہوئے تھے دعوتوں کو۔ اسی طرح ہادی ٹرسٹ کو بھی دعوت دیا گیا، ہم بھی گئے، تحفہ دیے، کھانا کھائے، اور 11:30 بجے سب لوگ نکل گئے، کیونکہ ہمارے بچوں کا سونے کا ٹائم بھی 10:30 بجے ہے، تو بچے بھی سو گئے، تو بچوں کو سلا دیے، اب سب لوگ چلے گئے۔ صبح میں ہمیں خبر ملی کہ ایسا ایسا ہوا، ایسے ایسے حرکتیں ہوئے، شرارتیں ہوئے، تب تابڑ توڑ، کیونکہ یہ فاروق گلبرگہ کو 6 مہینے پہلے ہی ہم ہادی یتیم خانے سے نکالے ہوئے ہیں، ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ گلبرگہ جیسے کہ ابھی آپ نے نام بتایا سر، یہ فاروق گلبرگہ کون تھے، اس کے متعلق تھوڑا یعنی ہمارے ہاتھ میں مدرسہ سیکھے ہوا شخص ہے، اور باہر وہ خود اپنا پرسنل مدرسہ چلا رہے ہیں، اپنا پرسنل مدرسہ باہر چلا بھی رہے ہیں، اور ہادی یتیم خانے میں چند دن پڑھا رہے تھے، اور یہ نعت خواں بھی ہے، اور اسی طرح ہادی یتیم خانے سے 6 مہینے پہلے ان کو نکال دیے ہیں۔ الحمدللہ ان کا ناظر قرآن ہوا ہے، عالم کورس تو نہیں ہوا، ناظر قرآن ہوا ہے، عالم اور حافظ نہیں ہے۔ سر آپ بول رہے 6 مہینے سے نکالے، یہاں پر آنا جانا رہتا ہے 6 مہینے سے، تو پڑھانے کے سلسلے میں ہادی یتیم خانے میں پڑھانے والے استاد کر کے افواہ پھیلا رہے، ہادی یتیم خانے میں پڑھانے والے استاد نہیں ہیں، کیونکہ اب دیکھو کئی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اگر صرف ادھر فارغین ہوئے بچے بھی ہو یا ادھر سے چھوڑ کے گئے بچے بھی ہو، استاد سے یا بچوں سے ملنے کے لیے آنا جانا سب کا رہتا ہے۔ نہیں سر، آپ جو گئے تھے ادھر دعوت کو، آپ کو آئی تھی دعوت ادھر ہے، تو یہ پروگرام جو چل رہا تھا آپ کو سن کے نہیں آیا؟ نہیں، تو آپ کا مدرسے کا نام سیدھا سیدھا اس پہ دکھایا جا رہا، خاص کر کے وہی ویڈیو شوٹ والے کرے، دیکھو ابھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہادی یتیم خانے کا بلڈنگ کا فوٹو آیا، یہ ہمیں صبح میں کیسا معلوم ہوا، تو تابڑ توبڑ اراکین نے یہ فیصلہ لیے کہ استاد اس کو ہادی یتیم خانے کے سامنے بھی آنے مت دو۔ نہیں، آپ 6 مہینے پہلے نکالے ہیں کر کے بولے نہیں ہم کو، ابھی آنا جانا یہاں پر 18 تاریخ سے ہمارا میسج آ رہا کیسا ہوا کر کے، جب تمہیں کیا بھی اکثر نہیں لیا 9 تاریخ کو یہ ہوا، فاروق گلبرگہ کا ولیمے کا رسم 9 تاریخ کو ہوا، 10 تاریخ کو ہمارے تک خبر آئی، 10 تاریخ کو صبح میں جب میں بیٹھا تھا صبح 8:30 بجے میرے تک خبر آئی، استاد ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، کچھ رات میں غلط رسمیں غلط رواجیں ہوئے ہیں، تو ایسے معاملات صبح میں ہمارے تک خبر پہنچی، تو فوراً ہم ممبرس ڈسکس کرے، ایک ہمارے یتیم بچے کا ولیمہ تھا، دوسرا اس ولیمے میں بھی آپ اگر وہ ولیمے کے کیسٹ یا ولیمے میں کسی کو انکوائری کرے تو ہمارے کوئی ممبرس یا کوئی اساتذہ ان سے بات نہیں کرے، کیونکہ ان سے دوریاں رکھے، اور تابڑ توڑ ان کو 10 تاریخ کو ہی ان کو ڈبار کر دیے، ٹوٹل حدیث سے ڈبار 10 تاریخ کو، یہ وائرل ہوا 17 یا 18 تاریخ کو، ہم لوگ ڈبار کرے، ان کو توبہ کرائے 10 تاریخ کو۔ تو یہ چیزیں ہمارے تمام اراکین، تمام لوگ ممبرس اس میں پوری کاروائی شدت، کیوں ہم کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتے، یہاں تک کہ آپ تمام کو پتا ہے میلاد میں ڈی جے کو تک سب سے زیادہ میں روکتے ہیں، آواز کرتا رہتا ہوں میں ہر جگہ،
तो अगर कोई भी गलत रस्म रिवाज हो घर को ही जाता नहीं। क्यों? हमारा हाथी का एक ही मकसद है, किसी के बारे में बुराई नहीं बोलना, किसी के लफड़े में नहीं जाना, अच्छा ही हो तो जाके मदद करना, कोई भी हो सबका सपोर्ट करना, यही एक मकसद से हम निकलते रहते हैं। तो इधर क्या है, ये होने के बाद हमें जब होने के पहले ये रात को का कितने बजे हुआ क्या हुआ हमने कुछ पता नहीं, मगर क्या है ये होने के बाद सुबह में जब खत्म पता चला ताबड़तोड़ हम एक्शन लिए। उस दिन के बाद अब कौन भी नहीं बता सकते कि वो हाथी यतीमखाने को आया हुआ है। आप बता रहे हैं कि यहाँ हुआ बोल के, अब रात में इतनी रात में हुआ बोले तो सिर्फ मोबाइल लगे बोले तो फोन आता था, लेकिन आपको कैसा नहीं पता चला? नहीं उतना साउंड नहीं है, देखिए अभी इसलिए मैं पड़ोसियों को बुलाया हूँ, पड़ोसियों को भी बुलाया हूँ। क्यों? अब आजू बाजू वालों को भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्या साउंड आया क्या। इतना बड़ा डीजे लगा डीजे नहीं डीजे लगे बॉक्सा लगे थे नहीं, वो रात में एक मिनट, रात में साउंड लगाए, हाँ रात में साउंड लगाए, कितना लगाए वो हमें पता नहीं। क्यों बोलो, आप दरवाजा अंदर करके बैठो, बंद करके बैठो, आप बाहर से साउंड लगाओ, कितना आवाज आता है आपको मालूम होता है। क्यों? 11:30 बजे हम सो गए, 11:30 बजे तो हम लोग नहीं थे, तो हमें पता भी नहीं था। तो ये साउंड हुआ नहीं हुआ क्या भी हमने हरकतें, क्यों खवालिया भी चलते रहते हैं हम लोग, क्या कभी कभी इधर खवाली महफिला चलते रहते हैं, कुछ भी हम लोग बच्चे सो जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें मालूम नहीं होता। अच्छा, वो आपकी मदद से फारिग है, तो तरबियत आपकी है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि मैं हमारे हाथी ट्रस्ट को उतना ही नहीं, क्योंकि मैं सारे मदारिस, सारे तहरीक, सारे खानखाओं को यानी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। और मैं एक ही मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक मदरसे का एक बच्चा या स्कूल का एक बच्चा या तहरीक का एक शख्स या खानखा का एक शख्स कोई गलती करा करके, वो इदारा खानखा गलती करा करके कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग उसको, क्योंकि जो किया गलत तरीका किया, क्योंकि वो 4 बच्चों को पढ़ाता है, अपना पर्सनल मदरसा पढ़ाता है, तो सबसे पहले उसको सोचना चाहिए था मैं ऐसा क्यों किया, ऐसा हरगिज वो करना नहीं चाहिए था। क्यों? हम सिखाने वाले हम ही गलती करें तो हमें और ना सिखाने वाले ना पढ़ने वालों में फर्क नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं मैसेज देता हूं कि आइंदा हर मैं उलमाए किराम हो या हाफिजे किराम हो या उसी तरह कोई भी मुस्लिम शख्स, क्योंकि आज हुबलियों में मैं सुना के हुबलियों में हर फंक्शन में आजकल चल रहा है, ऐसे हरकतें चल रहे हैं। शायद अल्लाह ताला हमारे हुबली के अवाम के लिए, हमारे लिए एक आंख खोलने के लिए ये चीज, ये फितना इशारा भी दिया है कि आज से ये रस्मों को रोको। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे शागिर्द लोग हुबली में अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज्यादा है, और उसी तरह 500-600 से जायद हमारे मदरसे से फारिगीन या मदरसे से पढ़े सो बच्चों की शादियां हैं। और अक्सर बेशतर सब लोगों को पता है, कहीं भी रिश्ता होता है हमारे मदरसों के बच्चों के लिए दरमियान में बात करने के लिए मुझे ही ठहराते हैं। उसी तरह अब ये भी रिश्ता हुआ, इसमें भी बात करने के लिए वो लोग आपस में बातचीत कर लिए, उनके वालिद और इनके वालिद सब बातचीत कर लिए, जब दरमियान में बातचीत करने के लिए मुझे ही बुला लेके गए। हर जगह जो उस्ताद के नाते मुझे बुला लेके जाते हैं। तो हमारे यतीम बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह इधर पढ़ रहे हैं, उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और एक बच्चे का भी दूसरे दिन वलीमा था, जुम्मा के दिन। हमारे आज तक 400 शादियां हुई, ऐसे खुराफात, ऐसी हरकतें कहीं भी आप ना देख सकेंगे ना सुन सकें। क्यों? अगर हम जब तक रहते हैं, आप किसी को भी इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी जमात हो, किसी भी आलिम को हो, इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं वहां हाजिर हुआ तो कोई भी शरीयत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो यतीम बच्चे जो माँ बाप नहीं है, फारिग हुए, उनके लिए फ्यूचर में एक उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको एक गहवारा बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसको भी हम तरक्की दे रहे हैं। क्यों? वो हमारे इदारे को एक मजबूती बनाए। और कमानगर में लड़कियों का भी यतीम खाना है और दारुल उलूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज्यादा मदरसे, कोई भी जगह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आप किसी हमारे जिधर पढ़ने वाले किसी पेरेंट्स को भी पूछ सकते हैं, कोई भी शरई काम, शरीयत के खिलाफ कोई काम करने हम लोग कभी भी नहीं देते, पहले से भी नहीं दिया, आइंदा भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इससे और हम आगाह मिली है कि आगाह मिली है। अगर हमारे यतीम बच्चों का कोई निकाह हुआ, हम तो यतीम बच्चों का क्या है मुख्तसर अंदाज से ही ज्यादातर करते हैं, इतना बड़ा खर्चा करने की ताकत तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसके बजाय हम 10 बच्चों को 1 महीना बच्चों का राशन खिला सकते हैं, हाँ खिला पिला सकते हैं। सर सवाल मुख्तसर करते रहे, जैसे कि अभी मैंने कुछ कहा कि सेफ्टी के पर्पस आपके पास क्या जो है मामला हैं, जैसे कि इस यतीम खाने में बहुत सारे यतीम बच्चियां रहते हैं, खासकर बच्चे जेंट्स रहते हैं।
ठीक है, उनके लिए सिक्योरिटी का क्या मसला है, या फिर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, क्या है इसके मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 सीसीटीवी कैमरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 असातिज़ा की निगरानी ऊपर रहती है हमेशा, और उसी तरह उनको हर तरीके से उनको हर नमूने से हिफाजत किया जाता है, क्योंकि बच्चों को कोई ज़रूरत हो, तबीयत खराब हो, हर नमूने से उनको ये किया जाता है। और हमारे बच्चों में हमें पैरामेडिकल हो, BHMS हो, BAMS, कॉमर्स, ITI, हर नमूने की तालीम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब इधर से बच्चा निकलता है पूरा आलिम कोर्स बन के 6 जबान सीख के निकलता है, उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, अरबी, फारसी, ये सीख कर निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हिफ्ज़ कोर्स भी चल रहा है मुख्तसर सा मैसेज देना। इंशाअल्लाह। मैं अवाम से आजिजाना व मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, क्योंकि देखिए अनजाने में आप लोग हादी यतीमखाना का नाम ले रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर गौसो ख्वाजा रजा के सदक़े और फतह शाह बाबा का करम समझकर आप लोग मेहरबान होकर हादी यतीमखाना नाम या मन्नानी उस्ताद का नाम कहाँ भी इस चीज में ना लें, क्योंकि हम लोग को ये पता ही नहीं था, क्योंकि सबके दिलों की हालत जाने वाला अल्लाह है। क्यों हमें ये पता था या नहीं पता था? देखो आप लोग सोचेंगे कि इनको इनके नाक के सामने हुआ, इनके आंखों के सामने हुआ, इनके बिल्डिंग के सामने हुआ, सब मालूम। देखिए अब बाजू के कमरे में क्या हुआ बताने वाले तो हम नहीं हैं, मगर मैं बोलता हूं कि ऐसा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि ये कुछ भी हमें पता नहीं था। जब दूसरे दिन पता चला तो ताबड़तोड़ यानी सबसे पहले इस्लाम, कोई बुराई चला तो उसे नफरत निकाम के पहले खत्म बढ़ाने के हिसाब से हम लोग सबसे पहले वही खत्म बढ़ाए और उनके तौबा करे और उनको दूर कर दिए। बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैह। जो लोग जो मेरे उस शरीयत के ख़िलाफ़ जो मैंने काम किया था उस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं, बराए करम उस वीडियो को वायरल ना करें। इससे पहले भी मैंने तौबा कर चुका हूँ। अब इस मीडिया के माध्यम से मैं आप तमाम से फिर से गुजारिश करता हूँ कि उस वीडियो को वायरल ना करें। मैंने तौबा कर चुका हूँ। अल्लाह बड़ा गफ़ार और रहीम है, वो यकीनन माफ़ करेगा। आपसे आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो खुदारा मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े आइंदा इस गुनाह पर कभी उस गुनाह को ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचूंगा। जो हादी यतीम खाने को लोग बदनाम कर रहे हैं, हादी यतीम खाने मैंने जो है इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। वहाँ पर जो है अब वहाँ से मेरा कुछ ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर खाली जगह होने की वजह से मैंने वलीमे की दावत की और आखिर में जो मेरी फैमिली वालों के साथ जो वीडियो शरीयत के ख़िलाफ़ काम हुए हैं, मैं फिर से आपसे इल्तिमास करता हूं कि उस मेरी शरारत को नज़रअंदाज करें। मैं फिर से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैह। हादी ट्रस्ट और उनके अराकीन ने मुझे बड़ा डांटा है, बड़ी सख्ती से मुझ पर पेश आई, उस पर मैंने फ़ौरन तौबा की है। फिर उन्होंने कहा है कि आज के बाद जो है हादी ट्रस्ट से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कभी आप हादी मदरसे के करीब भी ना आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।